Okay. Step 6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character. This is the step that separates the men from boys. So declares a well-loved clergyman who happens to be one of A's greatest friends. He goes on to explain that any person capable of enough willingness and honesty to try repeatedly step 6 on his faults without any reservations whatever has indeed come a long way spiritually and is therefore entitled to be called a man who is sincerely trying to grow in the image and likeness of his own creator. Lucky ji, can you share the screen for reading or you want me to share? You please share ना. You please share. लैपी पे है ना? सर्च ढूंढना पड़ेगा, जो रवि भी आया नहीं है. आप कर सकते हैं या मैं करूं? ओके, टाइमिंग में करता हूं अभी. ओके सर मैं कर देता हूँ, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए. कौन मैं नो आपका नाम? रवि आ गया ना? रवि आ गया है. Yes, sir. ओह रवि, आई वाज वेटिंग फॉर रवि. ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. स्टार्ट, वापस से स्टार्ट कर. लेट हिम शेयर. ओके. Step 6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character. This is the step that separates the men from the boys. So declares a well-loved clergyman who happens to be one of A's greatest friends. He goes on to explain that any person capable of enough willingness and honesty to try repeatedly step 6 on his faults without any reservations whatever has indeed come a long way spiritually and is therefore entitled to be called a man who is sincerely trying to grow in the image and likeness of his own creator. Of course, the often disputed question of whether God can and will, under certain conditions, remove defects of character will be answered with a prompt affirmative by almost any AA member. To him, this proposition will be no theory at all. It will be just about the largest fact in his life. He will usually offer this proof in a statement like this. Sure, I was beaten, absolutely licked. My own willpower just wouldn't work on alcohol. Change the scene. The best efforts of family, friends, doctor, and the clergyman got no place without my alcoholism. I simply couldn't stop drinking, and no human being could seem to do the job for me. But when I became willing to clean house and then asked a higher power, God as I understood him, to give me relief, my obsession to drink vanished. It was lifted right out of me. In AA meetings, next page, in AA meetings all over the world, statements just like this are heard daily. It is plain for everybody to see that each sober AA member has been granted a release from this very obstinate and potentially fatal obsession. So in a very complete and literal way, all A's have become entirely ready to have God remove the mania for alcohol from their lives. And God has proceeded to do. Over to you, Lucky ji. थैंक यू चंदू. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ. Hi, Lucky ji. ग्रेस ऑफ गॉड, सोबर टुडे. मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है और ए के तत्वों पे आधार पे जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ. आज पूषण हमारे बीच में है नहीं, लेकिन मैं और चंदू मिलके स्टेप 6 पे, जो कि छोटा स्टेप है लेकिन बड़ा गहरा स्टेप है, और इसके ऊपर 12/12 में बिल ने जो इसकी शुरुआत की है, वो शुरुआत की पहली लाइन यही कहती है कि ये जो कदम है ये लड़कों में और आदमियों में फर्क की बात करता है.
और जो वेल लव्ड क्लर्जीमैन लिखा है ना बिल ने यहाँ पे, वो थे फादर एड डाउलिंग। फादर एड डाउलिंग बिल के स्पिरिचुअल स्पॉन्सर थे, और बिल को स्पिरिचुअल मार्गदर्शन फादर एड डाउलिंग से ही मिलता था। तो वो कहते थे कि भाई छठा कदम जो है, ये छठा कदम लड़कों और आदमियों के बीच में का फर्क है, यानी कि चंचलता और गंभीरता के बीच में का फर्क है। बच्चे चंचल होते हैं ना, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी हाँ कर ले, कभी ना कर ले, यानी कि गंभीर नहीं होते हैं किसी भी चीज को लेकर के। लेकिन आदमी गंभीर होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे बिल हमारे को ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि हम अगर छठे कदम को, जैसा हमने पहला कदम शराब के साथ में लिया, वैसा अभी ये छठा कदम हमारे दोषों के साथ की बात करता है, हमारे सारे दोषों की बात करता है कि बिना किसी रिजर्वेशन के। और जब अगर हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर ऐसा समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति काफी आध्यात्मिक प्रगति कर चुका है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, वो गंभीर है, इसके लिए अब वो आदमी कहलाएगा, अब वो बच्चा नहीं रहा। और तो और बिल एक बड़ी गंभीर लाइन लिखता है जिसके ऊपर के शायद मैं ये स्टेप खत्म होने के बाद आएंगे। Who is sincerely trying to grow in the image and likeness of his own creator। वो अपने उच्च शक्ति के जैसा बनना चाहता है। बड़ी गहरी बात है। हम इस पायरी में बहुत जगह पे गॉड आता है, तो जो मेरे दोस्त नास्तिक हैं उनके लिए वो उच्च शक्ति को समझ लें। गॉड सबकी समझ में आता है, इसके लिए गॉड है। अब यहाँ पे सबसे पहला एक कारण मीमांसा आती, एक एक भूमिका बनती है, और वो भूमिका ये है कि हम सभी अपने जीवन में थक चुके थे, बड़ी चोटें खाई थी। अपनी इच्छा शक्ति के दम पे शराब से दूर रहने की कोशिशें नाकामयाब रही थी। जगह बदल के देखी, नाकाम रहे। दोस्तों ने, परिवार ने, डॉक्टरों ने, सब लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन मेरी शराब बंद नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मैं तैयार हुआ, देखिए छठा कदम तैयारी की बात करता है, और बिल ये भूमिका बना रहा है कि जैसे हम शराब से दूर रहने के लिए तैयार हुए और हमारा वो ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, वैसे ही मेरे जो दोष हैं उनके लिए मुझे तैयारी बनानी पड़ेगी। अब दोष दोस्त बताते हैं, परिवार बताता है, बीवी बहुत सारे दोस्त बताती रहती है, लेकिन हम तैयार नहीं रहते। जैसे हम शराब पीने का बचाव करते हैं, वैसे हम अपने दोषों के बारे में भी डिनायल मोड में रहते हैं। तो जैसे उस उच्च शक्ति पे विश्वास करते हुए और तैयारी बनाते हुए मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, वैसे ही क्या मेरे दोषों के बारे में भी हो सकता है? ये सवाल पैदा होता है। अब जो ऑब्सेशन लिफ्ट होने की बात है, ये तो सारी दुनिया में, इनफैक्ट इस मीटिंग में जुड़े हुए हर व्यक्ति का ये अनुभव होगा कि भाई जब वो तैयार हुआ तो उसे मुक्ति मिली, उस पागल प्रेम से मुक्ति मिली। यानी कि हम एक बार तो पूरी तरह से तैयार हुए हैं ताकि वो ताकत वो पागलपन को निकाल सके, और वो साबित हुई है। मैं इसमें अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बिल लिखता है ना, ऑब्सेशन लिफ्ट हुआ, बिल कई बार ऐसे प्रोफाउंड शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कि बिल्कुल सटीक है। ऑब्सेशन कम हुआ नहीं, ऑब्सेशन निकल गया की बात करता है। तो सच मानो तो मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पीते पीते लगभग 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र मेरे में शादी हुई, 24 साल की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद में घर में मैं अकेला पुरुष बचा था, और मैं
पूरा तांडव नाच नाच रहा था। मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी पूरी करने के चक्कर में, बड़ी हवस थी मुझे पैसे की, प्रतिष्ठा की, और उसके पीछे मैं आंख बंद करके दौड़ रहा था। और जितना तेजी से दौड़ना चाहता था उतना ज्यादा फ्यूल चाहिए था मुझे, उतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी, और वो ऊर्जा मुझे शराब देती थी। इसके लिए सुबह दोपहर शाम जब चाहे तब, ना मुझे कोई रोकने वाला है, ना मुझे किसी की शर्म थी। पिताजी थे नहीं, माँ बूढ़ी थी, पत्नी को तो मैं संभाल ही लेता था जैसे हम सभी संभालते हैं। लेकिन मेरी तकलीफें भी बढ़ रही थी। बहुत सारे प्रयत्न चालू थे, मेरे भी प्रयत्न चालू थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दोस्त की शादी में नाचते नाचते मेरे नाक में से खून आना शुरू हो गया और मुझे उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। बड़ी तकलीफ हुई, कोई नस फट गई थी मेरी। मेरा बीपी चेक किया तो बहुत हाई था, और डॉक्टर ने सब समझाया, डराया, सब कुछ किया उसने जो करना था, लेकिन नहीं हुआ। मेरे कई एक्सीडेंट हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे खुद के प्रयत्नों को कभी मुझे यश नहीं आया। मैं रोक लेता था। मुझे याद है एक बार एक धार्मिक स्थान में मैं गया था दोस्तों के साथ, और वो पूरे बड़ा धार्मिक स्थान है महाराष्ट्र का, और वहां पे जाने के बाद शराबी का अहंकार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त मुझे लेके गए थे कि लकी का दारू बंद करेंगे, चलो उधर चलते हैं। अब उनकी श्रद्धा थी, लेकिन जब मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे दारू बंद करने के लिए आए हैं, तो मैं उस सारे लाइन में जोर से चिल्ला के बोला, अगर इनमें ताकत है तो मेरी शराब बंद करके बताए। कोई नहीं बंद कर सकता मेरी शराब। वो अहंकार था कि निराशा थी, पता नहीं क्या था। और वो जब भी मैं धर्म स्थान पे जाके आया, उसके कई दिनों तक मैंने पी नहीं, लगभग हफ्ता भर नहीं पी, और पता नहीं मुझे क्यों नहीं पी। ये जो कहते हैं ना कि ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया। और एक दिन मैं एक दोस्त के दुकान के सामने से जा रहा था, तो उसने मुझे आवाज मारी, लकी दिखता नहीं आजकल। मैं बोला नहीं यार, काम से बिजी है। बोलता है तेरे को हम लोग लेके गया था ना उस दिन, उधर उधर का ही चमत्कार है, तेरा दारू बंद हो गया। अब उसने ये बोला, और मेरे को ऐसे लगा जैसे कि किसी ने उपकार किया, या मैं किसी के बोझ तले जब गया, या क्या हो गया। और मैं तुरंत उसको बोला, अभी मंगा रहे क्वार्टर पीते, अपन कहाँ दारू वारू बंद होती है अपने से, और दारू क्या बंद करने वाली चीज है। तुरंत डिनायल मोड में जा करके मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन में आकर के पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद चोटें बढ़ती गई और हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो गए। मेरा आखिरी हॉस्पिटलाइजेशन भाटिया जनरल हॉस्पिटल में था, और उस हॉस्पिटल में मेरा डिटॉक्स हुआ। और शनिवार के दिन मीटिंग थी, तो सुबह वार्ड बॉय मुझे लेने को आया। नीचे बेसमेंट में मीटिंग थी, वो मेरी पहली ए मीटिंग थी। उसके पहले मुझे ए का मैसेज दे गया था कोई, और वो जाते जाते ये बोल गया था कि क्या सोचा था, क्या हो गया, कहाँ जाना था, कहाँ पहुंचे, जरा सोचिए। और मैं सोचते सोचते बचपन से लेकर के उस उस दिन तक मैंने लगभग 3-4 घंटे ऐसे ही सोचा। बड़े बड़े वाकयात, शुरू में हुई तरक्की, उसके बाद में आने वाली तकलीफें, होने वाली बेइज्जती, पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ज्यादा नुकसान दिखाई दिए, बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई दिए। इनफैक्ट मैं अपनी फैक्ट्री उसी साल 1995 में छोड़ के आ गया था। 5 साल की मेहनत, ढेर सारा पैसा लगा के मैंने एक फैक्ट्री खड़ी की थी पार्टनरशिप में, वो मैंने छोड़ दी। और वो छोड़ने का कारण भी शराब ही था। शराब पी के ही झगड़ा हुआ था। और सोचते सोचते पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। रात को जब सो गया तो सो गया। अगले दिन सुबह वार्ड बॉय मुझे मीटिंग में ले गया, और उस मीटिंग में मैं जाके बैठा। लोग आ रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, शेयरिंग कर रहे थे। एक लेडी मीटिंग चला रही थी, और 10-12 लोगों ने शेयरिंग किया होगा। वो मीटिंग खत्म हुई और मैं उठा। मेरा पहला अनुभव ये था कि मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। जिसने मुझे मैसेज दिया था उसने कहा था कि कल आपको एक ही मीटिंग है,
आप एक ही मीटिंग में आइए, आपको और समझेगा और आपको हिम्मत मिलेगी। मुझे समझा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों से उठ गया है। मेरे अंदर से आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं है, अभी चीटिंग मत करना। उसके पहले भी मैं कई ऐसे ग्रुप्स में गया था जहाँ पे ग्रुप थेरापी चलती थी, लेकिन किसी एक अलग अलग विशिष्ट भगवान या पंथ के नाम पे चलती थी, और वहां पे मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये महसूस हुआ कि अभी चीटिंग मत करना। अभी अब जैसा ये शराब से दूर है ना, वैसा ही तू भी रह जाएगा। और मैं अंदर से जैसे आनंद होता है ना, मैं हॉस्पिटल के कपड़ों में था, अकेला ही था, लेकिन बड़ा रिलीफ था। और आज मैं उस 1995 के उस घटना को देखता हूँ, वो जो मेरे को जागृति आई वो देखता हूँ। आज लगभग 30 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई गंभीर मौका नहीं आया जहां पे मैं पी ही गया हूँ। अनइंटरप्टेड सोबराइटी, कंटिन्यूस सोबराइटी बोलते हैं जिसको हम। तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि हाँ, जब मैं तैयार होता हूँ तो कोई ताकत है जो वो बदलाव ला सकती है, जो कि 2 घंटे 4 घंटे क्या, 15 मिनट शराब से दूर रहने का विचार जिसके दिमाग में नहीं टिकता, उसके जैसे दिमाग में वो विचार ही नहीं है। अब वो मेरी तैयारी कैसे हुई थी, बिल यहाँ पे आगे चल के बताता है कि वो तैयारी हुई थी। जब चंदू आगे पढ़ेगा तो हम उस पर बात करेंगे। वो तैयारी हुई थी हमारा बॉटम हिट करके, मन तैयार हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे तैयारी अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोषों के बॉटम ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा गंभीर होते हैं। शराब पी के तो शायद मैं तब तक नुकसान कर सकता हूं जब तक मैं गिर नहीं जाता या बेहोश नहीं हो जाता। बेहोशी के बाद तो बंद हो जाता है ना सब कुछ। लेकिन दोष तो मैं होशो हवास में उनके ऊपर काम करता हूँ। मेरे दोष कंटिन्यूसली मेरे को लोगों का और खुद का जीना हराम करने को लगाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली शराब की तरह मैं बेहोश भी नहीं होता, मैं रुकता भी नहीं। दिन महीनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमको बिल ये 4 पैरास में ये बताना चाहता है कि अगर हम पूरी तरह से तैयारी बताएं ना, कि वो ताकत हमारा ये पागलपन लिफ्ट कर सकती है, और उसने किया है, इस बात के ऊपर विश्वास रखें, तो हम तैयारी बनाने में अगला कदम उठा सकेंगे। तो ये हम सभी के जिंदगी का अनुभव है कि एक बार तो वो ताकत ने काम किया है, असंभव को संभव किया है, और बड़े लंबे समय तक संभव करके रखा है। तो ये उस ताकत के अंदर क्षमता है। बिल यहाँ पे हमको ये बताना चाहता है कि हम डाउट वाले हैं ना, लेकिन उसके पास वो क्षमता है। यस चंद्र। Okay. Having been granted a perfect release from alcoholism, why then shouldn't we able to achieve the same means a perfect release from every other difficulty or defeat? This is a riddle of our existence, the full answer to which may be only in the mind of God. Nevertheless, at least a part of the answer to it is apparent to us. Men and women pour so much alcohol into themselves that they destroy their lives. They commit a most unnatural act, defying their instinctive desire for self-preservation. They seem bent upon self-destruction. They work against their own deepest instinct. As they are humbled by the terrific beating administered by alcohol, the grace of God can enter them and expel their obsession. Here, their powerful instinct to live can cooperate fully with their Creator's desire to give them new life. For nature and God
alike abhor suicide. Over to you, Lucky जी. तो जैसे मैं पहले शेयर कर रहा था कि शराबीपन के साथ हमारा अनुभव ऐसा था कि एक परफेक्ट रिलीज मिला था, यानी कि फिर से नहीं पिया तो इट कैन बी कॉल्ड परफेक्ट। तो अगर ये मेरी उच्च शक्ति शराबीपन के मामले में मेरे साथ कर सकती है, तो क्या ऐसा ही परफेक्ट रिलीज बाकी के डिफिकल्टीज में कर सकती है, डिफेक्ट्स में कर सकती है क्या? ये एक बड़ी गुत्थी है, बिल कहता है। और इसका पूरा जवाब तो शायद उस भगवान के मन में ही होगा। लेकिन एक बात तो, इसका एक जवाब तो हमें ज्ञात है कि जब हम इतनी सारी शराब अपने अंदर डाल रहे थे, खुद की जिंदगी, औरों की जिंदगी को तहस नहस कर रहे थे, तो ये कोई एक कुदरती एक्ट नहीं था, एक नैसर्गिक क्रिया नहीं थी, ये अनैसर्गिक थी। हमारे जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है, जैसे मैं पिया हूं, जितनी शारीरिक परिस्थिति नीचे जाती थी उतना और पीने को दिल करता था। उल्टियां आती थी, खून की उल्टी आती थी, नाक से खून बह रहा है, बीपी 200 के ऊपर चला गया है, वार्निंग्स कई चालू हैं, लेकिन उसके बाद में भी अपने शरीर के अंदर ठूस ठूस के शराब डालना, ये क्रिया नैसर्गिक क्रिया नहीं है, क्योंकि नैसर्गिक क्रिया तो आत्म संरक्षण की है ना, आत्मघात की तो नहीं है। लेकिन हम आत्मघात करते रहे, और जितना हमें शराब ने नीचे ले जाना था, जितना मारना था, जितने कोड़े पड़ने थे, उतने पड़े। अब वो कोड़े पड़ने के बाद हम जब थोड़े से तैयार हुए, तो हमारा परफेक्ट रिलीज क्यों मिला, बिल यहाँ पे समझा रहा है, क्योंकि हमारी शराब से दूर रहने की जो इच्छा थी और जो उसकी बनाई हुई कुदरती क्रिया है, यानी कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये दोनों का मिलन हुआ था। यानी कि शराब से दूर रह के मैं अपनी जान बचा रहा था, और जान बचाने की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट तो मुझे ऊपर वाले ने दी हुई है। तो ये दोनों साथ में जब जुड़ी तो वो परफेक्ट हो गया। बिल यहाँ पे ये 2 पैरास में उस गुत्थी को, उस विचार को खुलासा कर रहा है कि शराब के मामले में हमें परफेक्ट रिलीज मिला, लेकिन क्या मेरे दोषों के मामलों में, मेरी कमियों के मामलों में वैसा ही हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? और उस क्यों नहीं हो सकता के लिए उसने ये समझाया है कि शराब से दूर रहने की क्रिया यानी कि जान बचाने की क्रिया, और मेरे अंदर एग्जिस्टिंग जान बचाने की क्रिया है, जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो ये दोनों एक हो गई। ये परमेश्वर की इच्छा के साथ मेरी इच्छा का मिलन हो गया, जिसकी वजह से इसने एक परफेक्ट रूप धारण कर लिया। यस चंद्र। लकी जी, इसका मतलब क्या है? लास्ट लाइन, फॉर नेचर एंड गॉड अलाइक अबोर सुसाइड। हाँ, कुदरत और हमें बनाने वाला ये अभोर मतलब उसका विरोध करते हैं, ओके। सुसाइड का विरोध करते हैं। सुसाइड कुदरती नहीं है, जबकि हम क्या कर रहे थे, हम सुसाइड ही कर रहे थे ना, राइट। स्लो पॉइजनिंग ही थी। तो फॉर नेचर एंड गॉड अलाइक अभोर सुसाइड, यानी कि कुदरत और भगवान दोनों सुसाइड के खिलाफ है। तो जब मैं जान बचाने की क्रिया की तैयारी करता हूं, तो मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ वो मैच कर जाती, तो देन द रिलीज इज परफेक्ट। ओके ओके, ठीक। So next, most of our other difficulties don't fall under such a category at all. Every normal person wants, for example, to eat, to reproduce, to be somebody in the society of his fellows.
and he wishes to be reasonably safe and secure as he tries to attain these things. Indeed, God made him that way. He did not design man to destroy himself by alcohol, but he did give man instincts to help him to stay alive. It is nowhere evident, at least in this life, that our Creator expects us fully eliminate our instinctual drives. Page बदला क्या? Okay. So, as far as we know, it is nowhere on the record that God has completely removed from any human being all his natural drives. Since most of us are born with an abundance of natural desires, it isn't strange that we often let these far exceed their intended purpose. When they drive us blindly, or we willfully demand that they supply us with more satisfaction or pleasures than are possible or due us, that is the point at which we depart from the degree of perfection that God wishes us for us here on earth. This is a measure of our character defects, or, if you wish, of our sins. थैंक यू चलो। सो अब हम जैसे आगे चलते हैं तो हमारी जो कठिनाइयां हैं वो कुछ अलग कैटेगरी में नहीं पड़ती हैं। हर सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास उसको खाने की, उसको प्रजनन की और अपनी सोसाइटी में, समाज में जीने की, हम सामाजिक प्राणी हैं, जीने की इच्छा है। और उसके साथ साथ हमें सुरक्षित रहने की भी इच्छा है। और ये सारी इच्छाएं तो कुदरती इच्छाएं हैं, ये तो ऊपर वाले ने हमको दी है। उसने हमें शराब पी पी के अपने आप को तबाह कर ले ऐसा नहीं बनाया। उसने जो हमको वृत्तियां दी है, इंस्टिंक्ट्स दी हैं, वो बचाव के लिए दी है, वो जीवन के लिए दी है, वो आगे जीवन चलता रहे उसके लिए दी है। अगर मुझे भूख ना लगेगी, मुझे टेस्ट नहीं होगा तो मैं खाऊंगा नहीं। अगर मेरे को इंद्रियों में लस्ट या वासना, जो भी उसने अट्रैक्शन सेक्सुअल डाला है, तो उसकी वजह से मैं प्रजनन की तरफ करता हूं ताकि पीढ़ी चलती रहे। हर प्राणी के पास है। और खतरे से सावधान होता हूं तो मुझे सुरक्षित रहने की भी एक इंद्रिय है, एक क्रिया दी हुई है, जिसमें कि शायद मैं आग में हाथ नहीं डालता, या ज्यादा ऊंचाई से कूदता नहीं, या किसी बड़े जानवर से जाकर के पंगा नहीं लेता। ये सारी मेरी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये सारी की सारी मेरे बचाव के लिए भगवान ने दी हुई है मुझे। तो हम अगर कहें कि मैं लोभी हूं यार, बड़ा लालच है, मेरा मुंह बंद नहीं होता, मैं इतना खाता हूं, मैं इतना बस पेट भर गया तो भी मैं खाते जाता हूं, ओवर ईटिंग करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान मेरे मुंह का टेस्ट ही निकाल ले या मेरे से खाने की इच्छा ही निकाल ले। कोई अगर कहे कि सेक्स की इंस्टिंक्ट है जो कि ऊपर वाले ने मुझे दी है, और उसके साथ जो उत्तेजना जुड़ी है वो प्रेरित करने के लिए जुड़ी है, नहीं तो उस क्रिया में अगर आनंद नहीं होगा तो वो क्रिया होगी ही नहीं। आनंद वो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम उस आनंद के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि पूछो मत। और कोई कहे कि भगवान ने जैसे मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट कर लिया, तो क्यों नहीं मेरी ये सेक्स की इच्छा को भी लिफ्ट कर ले, नहीं चाहिए मुझे। तो बिल कहता है कि अगर ऐसी तमन्ना है इस मामले में, तो ऐसा कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है कि ऊपर वाले ने किसी व्यक्ति के जीवन में से सारी कुदरती इच्छाओं को निकाल ही दिया। पॉसिबल ही नहीं है। और हम में से सभी तो ढेर सारी ऐसी कुदरती इच्छाओं को लेके पैदा हुए हैं। दोस्ती की इच्छा, अगर हम सामाजिक प्राणी नहीं होते तो नई जगह पे जाने के बाद 40 लोगों के बीच में बैठना, उठना, बात करना, एक दूसरे को केयर करना, वो होता ही नहीं। हम अकेले अकेले रहते। लेकिन बिल यहाँ पे आगे एक कॉमा डाल के लिखता है, यही हमारी कुदरती इच्छा है। जब हमें और की मांग में बदल जाती है, एक लड्डू खाने से मजा आया तो 10 लड्डू खाने से और मजा आएगा। तो भले बाद में पेट का कुछ भी हालत हो या कुछ भी हो,
सेक्स में अगर मैं उन्हीं विचारों को और की भावना में ले जाऊं तो उसका कोई अंत नहीं है। अगर लालच में मैं अंधा हो जाऊं तो मुझे अपना पराया कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं शायद एक बहुत बड़ा चोर होऊंगा। मैं हर एक की चीज हासिल करना चाहूंगा। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं तो अतृप्त रहूंगा ही। और मेरी इच्छा ये है कि हर क्रिया में से जो वाजिब है ना, वो वाजिब से ज्यादा ज्यादा आनंद मिले। और ये हमारा समीकरण रहा ही है दोस्तों, पीते वक्त भी। अगर 3 पैग में इतना मजा है तो 6 में तो और डबल होगा, ट्रिपल होगा, 9 में और होगा, 10 में और होगा। तो ये जो और की क्रिया है, वो जहां से जो कुदरती प्लेजर्स है, कुदरती आनंद है, और जहां से मेरी और आनंद की इच्छा जागृत होती है, और जितना मैं दौड़ता हूं ना, तो दिल कहता है कि दैट इज एट पॉइंट एट विच वी डिपार्ट फ्रॉम द डिग्री ऑफ परफेक्शन दैट गॉड विशेस फॉर अस हियर ऑन अर्थ। यानी कि मेरे बनाने वाले ने जो मेरी नैसर्गिक वृत्तियों से आनंद दिया है, जितना मुझे आनंद मिलना चाहिए और मैं जितना पाना चाहता हूं, ये दोनों के बीच का अंतर, वो शायद हमारे डिफेक्ट्स का अंतर है, वो हमारे गुनाहों का अंतर है, वो हमारे गुनाहों को दर्शाता है। बड़ा गंभीर लाइन है दोस्तों, क्योंकि दोष बाहर से नहीं आते हैं। मेरा स्वभाव दोषी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर के मेरे जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, वो सैर भैर हो जाते हैं। वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो आपे में नहीं रहते हैं। समाज का दायरा, परिवार का, धर्म का, ये सारे दायरों को तोड़ देता हूं। मैंने जिनके साथ, अगर मैं वासना में अंधा हो जाता हूं, और जो समाज ने एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन बनाया है कि भाई ये जरूरत है, और ये जरूरत को पूरा करने के लिए उसका एक तौर तरीका बनाया है, लेकिन मेरे अंदर तो और की आग जल रही है ना अभी। तो हालांकि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन फिर भी वो और मुझे बहका देता है। और जब मैं वो क्रिया करता हूं, ये जानता हूं मैं कि मेरा परिवार तहस नहस हो सकता है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है, शायद मेरे पैसे का नुकसान हो जाए, इन सब के बावजूद मैं वो क्रिया करने को तैयार हो जाता हूं। तो एक कुदरती इच्छा और मेरी इच्छा के बीच में का अगर आप फर्क नापना चाहेंगे, तो यहाँ पे वही फर्क है। उतने ही बड़े मेरे गुनाह हैं जितनी कुदरती इच्छाओं से मैं दूर हूं। रुक के सोचने जैसी लाइन है ये, कि अगर मैं कहूं कि मैं गुस्से में अंधा हो जाता हूं, तो गुस्सा भी कुदरती चीज है एक। लेकिन जब वो क्रोध में बदल जाता है और मैं आपा खो देता हूं, और उस आपे, जब मैं असंतुलित हो जाता हूं, तो मेरे मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं, या कई बार मेरे हाथ चले हैं, तो कुदरती जो डांटने की क्रिया है, और बाद में क्रोध में आकर के जो झापड़ मारने की, या डंडा मारने की, या बीवी प्रेग्नेंट होने पे उसको पेंट का डब्बा उठा के मारने की जो क्रिया है, ये दोनों के बीच में का अंतर मेरे दोष की इंटेंसिटी को बताते हैं। हमने 5वें कदम में ये देख लिया है कि मेरे दोषों को मैं अब जानने लगा हूं। यहाँ पे दिल थोड़ा सा और क्लैरिटी देता है, भूमिका बना रहा है अब। बच्चे हैं ना हम, लड़के हैं, लड़कपन है, चंचल हैं, गंभीरता की तरफ ले जा रहा है। और ये गंभीरता, गंभीरता पूर्वक विचार करने वाली बात है
कि मैं कितना बहका हुआ हूं। सुरक्षा सभी को चाहिए, और सुरक्षा के लिए माल की सुरक्षा, घर बनाना है, सुरक्षित रह सकूं ताकि मेरे ऊपर छत हो सके, ये कुदरती है। तभी तो इंसान ने वन मानव से लेकर के आज तक तरक्की की हुई है। उसने अपना घर मजबूत बनाया, वो कुदरती इच्छा है। वो हमने अलग अलग मटेरियल्स का इजाद करके घर बनाए हुए हैं। लेकिन जब मैं इसी इच्छा के तहत लोगों को लूटता हूं, जब मैं मुझे जो वाजिब मिलना चाहिए उसके अलावा धोखा देता हूं किसी को, तो क्या मैं ये नहीं समझता हूं कि भाई पैसे के मामले में मैं झूठ बोल के ले रहा हूं इसको, कि तू मुझे मेरे बिजनेस में पैसे लगा, मैं 1 के 2 करके दे दूंगा, तेरे को 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा। मेरा असुरक्षित हूं कि मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए। लेकिन वो कंफर्ट पाने के लिए मैं कितना दूर जाने को तैयार हूं, या मैं कितनी दूर जा चुका हूं, ये जब मैं अपने अनुभव में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे दोष कितने बड़े हैं, मेरे गुनाहों की गंभीरता क्या है। यस चंदू। लकी जी, एक बात मैं जस्ट अभी नोटिस किया मैंने कि बिल डब्ल्यू ने कितनी खूबसूरती से लास्ट लाइन बताया है, दैट इज द मेजर ऑफ आवर कैरेक्टर डिफेक्ट्स और इफ यू विश ऑफ आवर सिंस। मतलब कैरेक्टर डिफेक्ट्स और सिंस दोनों सिनोनिमस है। उसने हमारे पापों को कैरेक्टर डिफेक्ट्स के नाम से अलग से वर्ड मतलब बताया है स्टेप में। एक्चुअली कैरेक्टर डिफेक्ट मतलब पाप। एम आई करेक्ट? कैसा है, कैसा है, जो सिन है ना, ये धार्मिक हम्म। शब्द है, ये क्रिश्चियनिटी का है। अच्छा। ओके। और कैरेक्टर डिफेक्ट जो है, ये एक लॉजिकल वर्ड है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है। देखो, स्वभाव दोष और पाप, हम्म। कैरेक्टर डिफेक्ट यानी कि स्वभाव दोष, और सिन यानी कि पाप। अब हमारा बिल यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने स्वभाव दोषों को पाप की तरह, अपने पापों की तरह भी देख सकते हैं, वही। इफ यू विश ऑफ अवर सिंस। परफेक्ट। वही है लकी जी, आपकी शेयरिंग से समझ आया कि पहले 90 में जो मजा आया था वो दूसरे 90 में कभी नहीं मिला एक्चुअली। लेकिन हमेशा लगता था दूसरी 90 और ज्यादा मजा देगी। एनीवेज। करेक्ट। ओके। इफ लकी वी जी। आस्क। हाँ जी, अश्विन जी लकी जी। बोलिए। हाँ। क्या ये आत्मिक कमजोरी या स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को भी इंडिकेट करता है? यहाँ पे ये बिल ये कंडीशन में है क्योंकि वो देख रहा है कि एक व्यक्ति अब शराब से दूर है, और वो स्पॉन्सर के साथ बैठ करके उसको ये ज्ञात हो चुका है कि भाई, केवल शराब पीना ही उसकी तकलीफ नहीं थी, उसका स्वभाव दोषी था। उसके दोषों की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। शराब पीना तो बाहरी प्रकटीकरण था उसकी बेचैनी का, उसके फ्रस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की बात नहीं करता है। आगे आएगी, आगे जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पे वो ये बताना चाहता है कि हम मिनिमाइज करते हैं ना, क्योंकि दुनिया भी यही बोलती रहती है कि जैसा लकी बहुत। लकी जी लकी जी जैसा शराब ये मेरे बीमारी का दिखने वाला स्वरूप था, मैनिफेस्टेशन था, वैसे ही बाहरी क्या ये स्वरूप कैरेक्टर डिफेक्ट मीन्स ये भी मेरे बीमारी का दिखने वाला मैनिफेस्टेशन है? नहीं, बिल यही तो समझा ओके। रहा है कि नैसर्गिक इच्छाएं जब सैर भैर हो जाती हैं, जब उनमें और की मेरी वो विकृति लग जाती है, तो वही कुदरती चीज है। सेक्स का इंस्टिंक्ट ओके कुदरती है ना, लेकिन जब उसमें वो दोषी कैसे हो जी सकती है, बिल यही बताता है, वो दोषी कैसे जी हो सकती है, वो तो कुदरती है। वो दोषी तब होती जी। है जब मेरी ये जो और जितना उस क्रिया से मिलने वाला आनंद है, मैं उससे कई गुना आनंद की उम्मीद करता हूँ। इसके लिए तो पार्टनर मैंने बदलने एक की बात प्रकार से आती वो है, इसके लिए। पैशंस है, पैशंस को मैंने सीन्स में कन्वर्ट कर दिया।
नहीं, पैशन नहीं है। पैशन Passion. नहीं है अश्विन। दर्शन दे दीजिए। ये हाँ ये हर चीज की मेरी जो ऊपर वाले ने दी हुई सीमाएं हैं, आनंद की सीमा है ना भाई। हम्म, देखो, अगर मैं 10 लड्डू खा हाँ हाँ लूं तो मेरा पेट भर जाएगा, उसकी सीमा है। लेकिन ओके अगर मैं इतना जी ग्लटनस हूँ, इतना खदाड़पन हूँ, इतना पेटूपन है मेरे में, तो मेरे को तो दूसरे की थाली का लड्डू और अच्छा लगता है। मैंने अपने तो 10 खा ही लिए, ओके लेकिन फिर उसके अंदर हाथ डाल के निकाल लेता हूँ। उसमें आनंद मिलेगा नहीं ना, जी 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 क्योंकि वो जी कुदरती नहीं रहा अभी, वो कुदरती नहीं रहा। राइट तो इसके ऊपर जी वाली लाइन में वो बड़ा अच्छा एक गहरा उसने लाइन लिखी है कि जितना फर्क कुदरती इच्छाओं में और आपकी क्रिया में है, शायद उतने ही गहरे आपके दोष हैं, या ऐसा कह लो कि आपके पाप हैं। ओके सर। Okay. If we ask, God will certainly forgive our derelictions. But in no case does he render us white as snow and keep us that way without our cooperation. That is something we are supposed to be willing to work toward ourselves. He asks only that we try as best we know how to make progress in the building of character. So, step 6, we're entirely ready to have God remove all these defects of character. It's a way of stating the best possible attitude one can take in order to make a beginning on this lifetime job. This does not mean that we expect all our character out of us as the drive to drink was. A few of them may be, but with most of them, we shall have to be content with patient improvement. The key words, entirely ready, underline the fact that we want to aim at the very best we know or can learn. How many of us? तो अभी तक दिल ने पूरी, Okay, या ओके, okay. तो अभी तक दिल ने वो पूरी भूमिका बना ली है। उसने अपने इस ऐसे में टप्पा दर टप्पा हमको यहाँ तक ले आया है कि अब जब हमको ये पता चल चुका है 5वें कदम में, और 6ठे कदम में ये क्लैरिटी दे रहा है, क्या सवाल ये उठता है, क्या ऊपर वाला हमें माफ कर सकता है? ऊपर वाला हमें ठीक कर सकता है? हमें फिर से साधारण सामान्य बना सकता है? तो यहाँ पे एक बात तो तय है, वो कर सकता है। और वो हमने दूसरे पैराग्राफ में ही सुन लिया था, जो कि शराब के मामले में उसने कर दिया हमारे लिए। वो अनजानी अजनबी ताकत ने मेरे लिए वो संभव कर दिया जो असंभव था। लेकिन जब अब दोषों की बात होती है, तो यहाँ पे हमारे सहकार्य के बगैर शायद वो नहीं कर सकता हमारे लिए। हमको तैयारी तो करनी पड़ेगी, हमको उसके ऊपर काम करने की तैयारी बनानी पड़ेगी। और शायद ये हमारा जो अभी नया चरित्र उभरना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम बर्थडे पता क्यों मनाते हैं? बर्थडे के 2 एंगल मैंने किसी ओल्ड टाइमर से सुने थे। एक तो मेरे शराबीपन का अंत की खुशी, इसके लिए कई लोग जिस दिन लास्ट ड्रिंक लिया होता है उसी दिन बर्थडे कर लेते हैं, इट्स ओके। और दूसरा, एक नए चरित्र का जन्म। अब ये नया चरित्र जो है, जो अब 6ठे कदम से शुरू होगा, क्योंकि 5वें कदम तक तो हमने निरीक्षण किया ना, एनालिसिस किया उसका, कि भैया अभी नए चरित्र में, नए कैरेक्टर में ये दोष नहीं होने चाहिए, या ये कमियां नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुक करके वो खुलासा करना चाहता हूँ, कमियों में और दोषों में। दोष उन चीजों को कहते हैं जो हमने कभी नहीं करने चाहिए, वो दोष हो गए। कमियां उन चीजों को कहते हैं जो मुझे करना चाहिए लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन पति का धर्म नहीं अदा करता हूँ। मेरे माँ बाप हैं लेकिन बेटे का फर्ज नहीं अदा करता हूँ।
मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, मैं कहीं समाज का घटक हूं, मैं कहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूं, लेकिन मेंबर के फर्ज अदा नहीं करता हूं, क्योंकि हर चीज के साथ में कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां जुड़ी हुई हैं। जब मैं अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाता हूं तो कहते हैं कि इसमें कमी है, ये नहीं करेगा, ये कमी है। इसमें कमियां आसानी से दूर हो जाती हैं। वो आगे चल के हमें और कदमों में पता चलेगा, क्योंकि हम कमियों को ही दूर करते हैं और दोषों को हम ऊपर वाले के हवाले करते हैं। दोषों को हम कुछ नहीं कर सकते। दोषों के बारे में सजग हो जाते हैं, और जब हम सजग होकर तैयार हो जाते हैं तो इसी कदम में वो बता देता है कि गंभीरता हो जाती है, फिर हम चंचल नहीं रहते हैं। और जब गंभीर हो जाते हैं तो फिर हमें दोष तकलीफ नहीं देते हैं। हमारी वो आत्मा जागृत हो जाती है, और जब अंदर से वो इच्छा निर्माण होती है तो उस इच्छा को जवाब देने के लिए आत्मा सक्षम हो जाती है। और फिर आत्मा अंदर से कहती है, लकी 2 मिनट के मजे के लिए तू कितना कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, कि जबकि तेरा अनुभव बताता है कि इसमें से मिलना कुछ नहीं है, लेकिन तेरी ये कुछ ऐसी विकृत इच्छा जैसी जाग रही है। छोड़ दे इसको, उस ऊपर वाले पे विश्वास रख। ये जैसे विचार आया वैसे विचार चला जाएगा, इसके ऊपर कृति करने जैसा नहीं है। तो हम अगर लालच में चोरी के ऊपर जाने का विचार आ जाए तो वो चोरी की हरकत, चोरी का भले विचार मन में आ जाए लेकिन चोरी की हरकत रुक जाती है। आसान सेक्स उपलब्ध दिखाई देता है, लेकिन वो पहला कदम उठाने की क्रिया रुक जाती है। तो जैसे जैसे हमारी क्रियाएं रुक जाती हैं, वैसे वैसे वो क्रियाओं को जन्म देने वाले विचारों की ऊर्जा कम हो जाती है। विचारों की ऊर्जा कब बढ़ती है? जब हम क्रिया को अंजाम देते हैं। ऑब्सेशन आने के बाद में पिया नहीं तो क्या होगा? वो ऑब्सेशन रहेगा क्या? धीरे 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 करके वो ऑब्सेशन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से जब अपने दोषों को हरकतों के रूप में अंजाम नहीं दिया, हम कैसे जाने जाते हैं हमारे दोषों को? जब हमने चौथा कदम लिखा तो हम ऐसे जानते हैं कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, किसने क्या बोला और मैंने क्या किया। जो 4 स्टेप का बिग बुक के अंदर एक सुंदर सा टेबल दिया हुआ है, हरकतों की वजह से जाने जाते हैं ना। हरकतें चोरी की हो सकती हैं, हिंसा की हो सकती हैं, बैक बाइटिंग, इमोशनल ब्लैकमेल की हो सकती हैं, सेक्स की हो सकती हैं, जो कि रेप में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। ये सारी हरकतें, सारे एक्शंस हैं हमारे। और ये एक्शंस ही हमें बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया। हम अपने 4 स्टेप में ये तो नहीं लिखते ना कि मैंने सोचा और वो लिखा। सोचते तो शायद हम लाख चीजें हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजों पे कृति करते हैं। इसके लिए कई बार जब दोषों के बारे में बात होती है तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि शराबीपन के मामले में हम शायद एक जैसे बीमार हैं, एक जैसे पागल हैं, लेकिन दोषों के मामले में ये पागलपन एक जैसा नहीं होता है। मेरा पर्सनल बात करूं तो मैं इतना डरपोक था कि मेरा सेक्स रिलेटेड अनुभव रेड लाइट एरिया छोड़ दिया तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद शादी के बाद तो और जीरो, क्योंकि शायद मेरी वो डिजायर सीमित थी या मेरा पागलपन उस मामले में बड़ा नहीं था। लेकिन जहां पे मैं दूसरी तरफ लालच की बात करूं तो मेरा लालच ट्रिमेंडस था। मैं एक कंपनी में, जब दोषों को हम पागलपन कहते हैं, मुझे मशीनें बनाने में आनंद आता है और मैं ऐसा समझता हूं कि मैं उसी में से पैसे कमाऊंगा। ये मेरा समीकरण है, मेरी गणित है। हर आदमी अपनी अपनी गणित बना लेता है। तो मैं लगभग 5 बरस सोबर था, और अब सोबर तो है और मटेरियल दिखाने के लिए नहीं है, तो सोबराइटी खाली लगती है। कितना भी कह लें दोस्त, लेकिन अंदर से वो जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वो कुदरती है। दिल यही समझाना चाहता है कि अप्रिशिएट होना ये कुदरती है। अप्रिसिएशन यानी कि प्यार, यानी कि जब कोई गले लगाता है, कोई खुश होता है हमारे लिए और हमारी तारीफ करता है,
तो हमें अच्छा लगता है, और ये कुदरती चीज है, नेचुरल है, ये अननेचुरल नहीं है। तो पैसा कमाने से आनंद होगा, लोग बहुत तारीफ करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये साबित कर पाऊंगा मैं। और वो चक्कर में मैंने एक फैक्ट्री डाली, आनंद फानंद में डाली, बड़ी घाई में था मैं, क्योंकि जल्दी बनाना चाहता था, और उस चक्कर में मैं बहुत सारी फंडामेंटल गलतियां कर गया। अब वो फंडामेंटल गलती करने के बाद जब मुझे लगा कि नुकसान हो जाएगा, तो उतने में मुझे पता चला कोई एक और व्यक्ति एक इंपोर्टेड मशीन लाया है जो इंडिया में पहली है। अब मेरे अंदर का वो भूत, मेरे अंदर का वो पागलपन, मैं उसको छोटा सा काम देने के बहाने वो फैक्ट्री में घुस करके, यानी कि जैसा आदमी बोलता है ना कि दिन दहाड़े हाथ डालने की बात है, मैं वैसा ही घुस गया, और बकायदा मेजरमेंट ये वो जैसे मेरे बाप का ही है वो। अब वो किसी को घुसने देते नहीं थे, मैं फैक्ट्री का मालिक था, इसके लिए अलाउ किया। लेकिन मेरी उस हरकत को जब उस मालिक को पता चला, तो उसने तो, मैं तो भागा जब पता चला, तो जब पकड़े जाते तो हम भाग जाते, निकल जाते हैं। लेकिन मेरा मटेरियल दिया हुआ उसने अटका दिया, मेरे पे मानहानि का दावा करेगा, मेरे को कोर्ट में खींचेगा, पुलिस बुलाएगा, बहुत झंझट झेलने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए क्या फर्क है उस व्यक्ति में जो किसी और के ऊपर हाथ डालने के लिए काम वासना से प्रेरित हो जाता है, और मेरे में जो किसी और के माल को कॉपी करना चाहता ताकि मैं जल्दी में कुछ बना सकूं। कोई फर्क नहीं है दोस्त, कोई फर्क नहीं है। एक डरा हुआ इंसान खून कर सकता है। अधिकतर ऐसी वारदातें डर में होती है। तो यहाँ पे आकर के हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे दोष एक जैसे नहीं है, उनकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो यहाँ पे बिल ये कहता है कि सो स्टेप 6 की बात करता है कि हमारे पास ये मोड़ पे खड़े हैं कि अब हमें पूरी तैयारी बतानी है कि वो ताकत इन दोषों को दूर करेगी। क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं हूं तो कोई भी ताकत मेरे लिए काम नहीं कर सकती है। ये मेरे पीते वक्त सिद्ध हुआ है। कई बार हम एक ही शेयरिंग्स में सुनते हैं ना कि साक्षात ब्रह्मदेव भी नीचे आके खड़ा हो जाए और मुझे कहे कि लकी आज मत पी, तो मैं उसको पटा लूंगा कि आज नहीं, कल से नहीं पीऊंगा। आज उल्टा तू भी मेरे साथ बैठ पी ले यार, कल से बिल्कुल बंद करेंगे। तो ये साबित हो चुका है, अब उसके लिए तैयारी है। तो द एज वे ऑफ स्टेटिंग द बेस्ट पॉसिबल एटीट्यूड। अब एक जिंदगी भर के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं हम छठे कदम से। लाइफ टाइम जॉब कहते हैं बिल, और सच में लाइफ टाइम जॉब है। आज मैं 30वें साल की सोब्राइटी में अपने अंदर कई बदली हुई चीजें देख रहा हूँ। डर का बहुत बड़ा हिस्सा देख रहा हूँ मैं, असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की आदत है। वो कि ए के प्रोग्राम ने लगाई है तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ऑब्जर्वेशन से ही उसमें उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक्शन नहीं लेता ना। तो ये लाइफ टाइम के जॉब की शुरुआत है। और अगर आप ऐसी यात्रा पे निकले हो जिंदगी भर के लिए, तो सबसे अच्छा साथ क्या हो सकता है? सबसे अच्छी चीज हो सकती है आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण। सो एक बड़ा ही उदार दृष्टिकोण लेकर के हम तैयारी पे लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दोष उस तरह से लिफ्ट हो जाएंगे जैसे हमारा पीने की इच्छा हुई है। कुछ हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर दोषों के साथ हमें शांति बनाए रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे होंगे। तो जैसे लिखा है इसमें, इस पायरी का की वर्ड से एंटायरली रेडी। ये इस बात को साबित करता है, इस बात को हमें दर्शाता है कि हम जो बेहतर है, जो बहुत अच्छा है, उसकी तरफ चलते हैं, उसको सीखना चाहेंगे कि कैसे मैं अपने आप को और तैयार करूं। यस चंद्र।
लकी जी, क्या कोई शेयरिंग या सवाल जवाब लें या कंटिन्यू करें? जैसे कि अच्छा, अब इट इज ऑलमोस्ट 10। इट्स हाफ एन आवर, 9:30 आई हाँ हाँ गेस। हाँ, करेक्ट करेक्ट मेरे करेक्ट को करेक्ट। 7:30 बजा रहे थे तो। हाँ नहीं नहीं, इट इज हाफ एन आवर। सो व्हाट वी कैन डू, अगर इफ देर आर एनी क्वेश्चंस लेंगे, लास्ट के 20 मिनट रखेंगे। ओके, तो हम एक दो पैराग्राफ लेते हैं फिर। हम्म। ओके। हाउ मेनी ऑफ अस हैव दिस डिग्री ऑफ रेडीनेस? In an absolute sense, practically nobody has it. The best we can do, with all the honesty that we can summon, is to try to have it. Even then, the best of us will discover to our dismay that there is always a sticking point, a point at which we say, no, I can't give this up yet. And we shall often tread on even more dangerous ground when we cry, this I will never give up. Such is the power of our instincts to overreach themselves. No matter how far we have progressed, desires will always be found which oppose the grace of God. Continue? तो बिल यहाँ पे उन्हीं चीजों को फिर से हमारे सामने ला रहा है कि हमारी इच्छाएं तो मरते दम तक रहेंगी। मुद्दा ये है कि हम में से कितने जन तैयार हैं। पूरी तरह तैयारी की बात छोड़ दो, कितने जन साधारण तौर पे तैयार हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल शेयरिंग्स में वो टर्म यूज करते हैं कि गुस्सा तो यार मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया तो लोग तो मेरे को डोरमैट समझने लग पड़ेंगे कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं, इसको जो मर्जी कर लो यार, पंचिंग बैग बना देंगे, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करेगा फिर। तो ये गुस्सा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, कि इसमें मेरा अहम बना रहता है। तो बिल यहाँ पे ये बताना चाहता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं कि कोई एक अपने दोस्त के बारे में, यार ये कभी छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन तैयारी जरूर बतानी चाहिए हमने। तो यहाँ पे बिल हमें वो 7 डेडली सिंस का जो हमने 4th और 5th स्टेप में उसका वर्णन सुना, उन्हीं को लेकर के वापस से ये बताना चाहता है कि हमारी इच्छाएं कैसे सैर बैर हो गई थी। जो कुदरती इच्छाएं हैं, जहाँ पे हमारा ग्रीड, हमारा एंगर, हमारी ग्लटनी यानी कि खदाड़पन या पेटूपन, ये सारी, हमारा आलस, ये सारी चीजें कम ज्यादा मात्रा में हमारी हैं। और इनमें से कई चीजों ने शायद हमें अपना रॉक बॉटम भी दिखाया हुआ है। वो हर एक अपनी इन्वेंट्री में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि क्या 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 रॉक बॉटम देखा है। तो मैं बोलता हूँ चंदू, अगर हमने रुकना है ना, तो एक काम बहुत बढ़िया हो सकता है, एक एक्सरसाइज। हमने कई बार शराबीपन के कारण रॉक बॉटम सुने होंगे, लेकिन अगर कोई मेरे दोस्त तैयार हैं सोबराइटी में दोषों के कारण मिले हुए समझे हुए रॉक बॉटम पे शेयर करने के लिए, तो हम सभी जो जुड़े हुए हैं ना, हम सभी को फिर से इस बात का अंदाजा हो जाएगा, उसकी गहराई समझ में आ जाएगी कि सोबराइटी में रॉक बॉटम क्या होता है। कैन वी डू दैट? सही बात है। या वी कैन डू दैट। और मुझे लगता है कि हमें रिकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए ताकि हमारे भाई थोड़ा ओपनली शेयर कर पाए इस मीटिंग में। ऐसे भी क्लोज मीटिंग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं हम अगर चाहें। बिल्कुल कर दीजिए। जरूर। रवि जी, प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। और मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आप। ओके। यस, गुड। सो
यहाँ पे अभी बिल हमें आगे लेके जाता है और हमें ये बताना चाहता है कि हम जब अपने दोषों की बात करते हैं तो उन दोषों की एकदम भयानक स्वरूप देखते हैं कि जैसे हमारे सेक्स के एस्केपेट्स जो होते हैं या हमारी जो छोटी मोटी छलांगे होती हैं, वो शायद हम ऐसा सोचने लग पड़ते हैं कि यार मैंने कौन सा रेप कर दिया, या मैंने क्या कहाँ किसी की चोरी कर ली, या क्या कर लिया। इसका मतलब ये है कि मेरा जो डिनायल है, जो शराब के मामले में था, और जो डिनायल का स्वरूप है कि मैं मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज यानी कि मैं हर अपने दोष को छोटा करके देखता हूँ, या बात करते टाइम भी छोटा करके बोलता हूँ, है लेकिन उतना नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो कि शायद अपने दोषों को वो गंभीरता के वो बॉटम लेवल तक लेके जा सके। हाँ जरूर, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई एक आधा दोष हमें एक बॉटम हिट करा सकता है, डेफिनेटली। अब जैसे अश्विन अश्विन शेयर कर रहा था और उसने अपने उस एक सेकेंडरी एडिक्शन की बात की, तो ऐसे सारे सेकेंडरी एडिक्शंस इस छठे कदम में आ जाते हैं। ओके, ये ना सिर्फ दोषों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी एडिक्शन भी तो दोष ही हुआ ना, डिपेंडेंसी हुई। और डिपेंडेंसी किसी भी केमिकल के ऊपर हो, वो अनहेल्दी है, वो अनैसर्गिक है, वो कुदरती नहीं है। तो जैसे आमतौर पे हम देखें तो हम हमारा सेकेंडरी एडिक्शन अधिकतर लोगों का तंबाकू या स्मोकिंग होता है। तो कई बार ऐसा लगता है अरे यार शराब तो छोड़ दी, अभी सब कुछ छोड़ दिया, अब ये छोटा मोटा तो चलने दो ना भाई। दिल उन्हीं सारी चीजों को पकड़ करके। लेकिन ये मैं बात बता दूं, अधिकतर सोब्राइटी में ये मेंबर्स अगर किसी बीमारी से मरते हैं तो वो शायद कैंसर ही होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे ओल्ड टाइमर्स को जानता हूं जो कि कैंसर से गए हैं। एक्सेसिव, खास करके स्मोकिंग वाले मेंबर्स कैंसर से ही जाते हैं लास्ट में। बट एनी विच वेज, तो एक तरफ तो हम इन दोषों को ऐसा करके देखते कि मेरे पास ये नहीं है, डिनायल मोड में उनका बचाव करने के लिए जाते हैं कि भैया देखो यहाँ पे बिल एक एक चीज का उदाहरण देके बताता है कि भैया ये इतने विध्वंसक तो हम नहीं हो जाते कि कोई इतना लालची तो नहीं हो जाता कि वो चोर ही बन जाए, या तो कोई इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहता कि वो खून ही कर दे, या इतनी वासना नहीं जागरूक करना चाहता कोई कि वो रेप कर दे, इतना ग्लटनस यानी कि हाउरट या खदाड़पना नहीं लाना चाहता, पेटूपन नहीं लाना चाहता कि वो बीमारी हो जाए, और कोई इतना भी आलसी नहीं होना चाहता कि वो पैरालाइज ही हो जाए, यानी कि स्थिर हो जाए, एकदम पत्थर हो जाए। तो हमारे पास ऐसे पराकोटी के अनुभव है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक हमें एक और इशारा देता है अभी वो। अब वो बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वो दोषों के गंभीर होने के पहले की बातें हैं। उसमें हमें ये बताता है कि हम अपने सहकर्मी से थोड़ा सुपीरियर तो महसूस करना ही चाहते हैं। हर एक को अच्छा लगता है कि कोई दूसरे से मुझे थोड़ा श्रेष्ठ समझे। हम अपनी लालच को, ग्रीड को, अपना एम्बिशन बताते हुए बुर्का पहना देते हैं। एम्बिशन का अंदर से होती है ग्रीड है, मैं उसको लाइक करता हूँ, अच्छी लगती है, ये शायद लस्ट का बुर्का है। हमें देखना पड़ेगा उन छोटी छोटी चीजों पे। मैं तो मदद करना चाहता था उसकी, मैं तो मदद ही कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग हर। लेकिन क्या वो हेल्प के पीछे वासना है, देखनी पड़ेगी। कई बार हम वाजिब गुस्से को भी बड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सेल्फ राइटियस एंगर बोलता है कि जो वाजिब गुस्सा है करना ही चाहिए। किसी ने आकर के मेरा कोई नुकसान कर दिया, या किसी ने कोई गलती कर दी जिसकी शायद भुगतान मुझे करना पड़ा, तो ऐसे में गुस्सा वाजिब हो जाता है। तो बिल कहता है कि वाजिब गुस्सा भी तो बड़ा आनंददायक होता है। वो एक विकृत वे में वो हमें तृप्ति देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। अब गॉसिप, क्या गॉसिप
किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन के जैसा नहीं है, पोलाइट मर्डर है ना। किसी के बारे में हम जिसका चरित्र हनन करते हैं, उसके बारे में पीठ के पीछे जब हम उसके बारे में चार बातें बोलते हैं, वो ओल्ड टाइमर मालूम है कि क्या है? अरे अपने सेक्रेटरी का, सोसाइटी का सेक्रेटरी मालूम है क्या करता है? हम ऐसा जब लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं तो बिल कहता है कि वो तो पोलाइट फॉर्म ऑफ मर्डर है ना, कैरेक्टर असासिनेट कर रहे हो, उसमें से हमें विकृत आनंद तो मिलता ही होगा। एक बात सोचिए, जिसमें से हमें आनंद नहीं मिलता है हम वो चीजें नहीं करते। तो गॉसिप करना कैरेक्टर असासिनेशन है। अब जहाँ पे खाने की बात आई तो बिल वही कहता कि भाई मेरा तो कंफर्ट है, मैं इतना खा रहा हूं। बट हमारे डिफेक्ट इतने ट्विस्टेड हो जाते हैं, इतने बुरके पहन लेते हैं, इतने छोटे छोटे स्वरूपों में आ जाते हैं कि शायद वो हमारे स्वभाव में इतने बन गए हैं कि उनकी तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती। तो इतने सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं, गॉसिप का उदाहरण दे दिया, हेल्प करने के पीछे मैं किसी से मेरे वासना की भावना है, मैं लालच को एम्बिशन का नाम देना चाहता हूँ, गॉसिप को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का नाम देना चाहता हूँ, भाई तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तू सुधर जा, तू ऐसा मत कर। ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं मुझे कि मेरे दोष उतने गंभीर न भी हों, या मुझे लगे उतने गंभीर नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों का जो बिल ने यहाँ वर्णन किया है उनका तो इस्तेमाल हम आनंद पूर्वक करते ही हैं। अब हम बात इनकी करते हैं। इसके साथ साथ वो आलस का एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है। अब आलस एक कमी है, ऐसा कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन, टालम टाल करना। कल करेंगे जी, फोर स्टेप ली, नहीं यार कल से करते, थोड़ा अगले महीने से करते हैं, अगले साल से करते हैं। मैं टालता हूं बहुत सारी चीजें जो मुझे स्टेबल करेंगी, जो मेरी असुरक्षितता को दूर करेंगी, जो एक्शन मांगती हैं, वो मेरे आलस के दोष के कारण मैं कल पे डालता हूं। और प्रोक्रास्टिनेशन, जिसको टालम टाल बोलते हैं हम, वो हमारा एक बड़ा दोष है, साइलेंट किलर है वो। प्रोक्रास्टिनेशन तो ऐसी चीज है कि वो आपको पैरालाइज कर देता है, वो आपको आगे चलने ही नहीं देता। तो क्या इन सारे दोषों को हम भूल जाएं? ये माइल्ड लगते हैं, लेकिन क्या हम इतना इंतजार करते रहे हैं कि ये माइल्डनेस जा करके इतनी सीमा तक पहुंच जाए कि जहां पे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाए, जान माल की हानि हो जाए, उतना इंतजार करें क्या? नहीं बोलता दिल। Therefore, it seems plain that few of us can quickly or easily become ready to aim at spiritual and moral perfection. We want to settle for only as much perfection as will get us by in life. तो एक तरफ तो हम इनको इग्नोर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअल परफेक्शन की बात करते हैं, नैतिक परफेक्शन की बात करते हैं। तो हम ये दो स्विंग्स, दो पीक के बीच में रहते हैं। एक तरफ तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे दोष उतने कोई बड़े हैं ही नहीं, मैंने कुछ खास किया ही नहीं, तो किस पे काम करूं। दूसरी तरफ मेरे इन दोषों का एक सुप्त स्वरूप मेरे गॉसिप में, मेरे विचारों में घूम रहा है, मैं चीजों को टालम टाल कर रहा हूं, ये भी दोष ही है। और जब इन दोषों की बात आती है तो मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह से निकल जाए, तो वी ट्राई टू एम एट स्पिरिचुअल एंड मॉरल परफेक्शन। लेकिन बिल कहता है कि हमें जितना जीने के लिए जरूरी है उतना परफेक्शन तो लाना ही पड़ेगा। सो यहीं पे मैं लगता है चंदू एक पैरा ज्यादा पड़ गया, एक पैरा ज्यादा आगे चला गया है। यहीं पे वो कहता है It's okay, Lucky कि ji. या It's
So the difference लक्की भाई, between the boys चंदू and जी, men is the difference between striving for self-determined objectives and for the perfect objective which is God. पहले तो उसने फादर एड डाउलिंग का वो वाक्य से इस स्टेप 6 की शुरुआत की कि भाई ये कदम लड़कों में या लड़कपन में और आदमियों में या जिम्मेदारी में फर्क है। अब यहाँ पे उसका और खुलासा करता है वो, लड़कों में और आदमियों में फर्क क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैंने अपने दोषों की लिस्ट बना ली है और इनको पूरी तरह से जागरूकता से एकदम साफ कर देना है, या मैंने कुछ पाना है, मैंने कुछ एक कि कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी हो जो कि मेरा सेल्फ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हो, मैंने तय किया हुआ ऐसा एक दृष्टिकोण हो और एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव है, वो है हमारी उच्च शक्ति। अब याद रहे दोस्तों, कुछ पैरा पहले उसने लिखा था इन लाइकनेस ऑफ हिज गॉड, और यहाँ पे लिखता है परफेक्ट ऑब्जेक्टिव विच इज गॉड, यानी कि हमारा काम प्रयत्न करना है, हमारा काम जानना है, हमारा काम निरीक्षण करना है, हमारा काम तैयार होते रहना है, हमारा काम जागरूकता से अपने दोषों पे या उन गाफिल क्षणों में आए हुए विचारों पे कृति न करना है, अपने आप को रोकना है। परफेक्ट ऑब्जेक्टिव विच इज गॉड, इसका अर्थ ऐसे भी मैं निकालता हूं कि जिंदगी में हम शायद कुछ सालों के बाद किसी न किसी अपनी गलती के शिकार हो सकते हैं। दुनिया गलतियों से भी तो भरी हुई है, अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ मिलते हुए, लेकिन ऊपर वाला कैसा सबको लेके साथ में चलता है। यहाँ पे पापी भी हैं, यहाँ पे संत भी हैं, यहाँ पे आलसी भी है, यहाँ पे रेपिस्ट भी हैं, सब कुछ मिला ले। यहाँ तो उजाला भी है, अंधेरा भी है, यहाँ पे रंग भी है, यहाँ पे पानी भी है। यानी कि परफेक्ट ऑब्जेक्टिव की जब बात कहता है, यानी कि वो होलिस्टिक बात हो गई। हम अपना दृष्टिकोण अपने आप में सुधार लाने का हमेशा बनाए रखेंगे, सेल्फ डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाएंगे हम क्योंकि जब हम कोई चीज को ठान लेते हैं ना, तो ठान करके पाने की जब बात करते हैं तो अहंकार की बात होती है। इट इज नॉट अ परफेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉड, ऑफ द हायर पावर। वो मेरा पर्सनल ध्येय बन जाता है। अब इसके आगे चलो पढ़, टाइम हो गया यार, टाइम हो गया। वी विल लीव Yes, फॉर लकी क्वेश्चन जी। बिकॉज या लास्ट, वो एक आई विल समरी आस्क कर हिम, देंगे। हाँ आई विल आस्क बिकॉज लाइकनेस ऑफ गॉड इतना गहरी लाइन है अपने एग्जैक्टली। बनाने वाले जैसा, इन द लाइकनेस ऑफ हिज गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें सवाल ये उठता है, सबको अगर मैं पूछूं अगली बार तैयार करके आना, आपको क्या लगता है कि आपकी उच्च शक्ति के क्या गुण हैं? अगर जो सुनने वाले मेरे दोस्त यहाँ पे साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, अगर उच्च शक्ति को समझना चाहते हैं, तो आपकी समझ की उच्च शक्ति के क्या गुण होंगे, वो जरा सोच के आइएगा। अगली बार आपको बहुत अच्छा खुलासा मिलेगा, बहुत अच्छा खुलासा मिलेगा। एकदम जैसे दिशा मिलती है ना, वैसे हो जाएगा। उच्च शक्ति के गुण सोच के आइए, क्योंकि अवगुण तो हो ही नहीं सकते उसमें, तो वो सोच के आइए। फिर हम ये दो चीजों पे बात करेंगे, पूषण को बोलेंगे, एक तो इन लाइकनेस ऑफ गॉड, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड फॉर द परफेक्ट ऑब्जेक्टिव विच इज गॉड। थैंक यू चंदू, आई थिंक द टाइम इज अप। थैंक यू। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। श्योर।